यस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप तो और ज्यादा वो कि मतलब टाइम पे हमने एंटर ही नहीं करना मीटिंग में, क्योंकि हमें कौन सा कोई कुछ कह सकता है, राइट? सी द करेज ऑफ दोज who are sitting here, right? Sometimes we scold them also so that they can perform well. We give them instructions also. So you should to be very much on time, right? जो बच्चे घर से तैयार होकर यहाँ पे आ रहे हैं उनमें से दिव्यांश इज ऑलवेज ऑन टाइम, मतलब नेवर ही गेट्स लेट, ही इज एट 9:10 ही इज देयर। और क्या, चलिए बस, नो कमेंट, नो कमेंट प्लीज। चलिए 10.5 एक्सरसाइज, 8th क्वेश्चन वाज गोइंग ऑन। Question number 8 we are going to start with. What the statement is, if non-parallel sides of a trapezium are equal. सबसे पहले बात किसकी हो रही है? Trapezium की. So yesterday I was asking you that what is the definition of trapezium, and you told me trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel and another is non-parallel. Trapezium सबको पता है, one pair of opposite sides जिसमें parallel हो and another pair of opposite sides is non-parallel, that quadrilateral is known as trapezium. So first target of R is to make the figure. Now with one condition he is given this figure, that this time the हमें पता है the one pair of opposite side parallel, another is non-parallel. This time the non-parallel sides, that means AD and BC, as you can see on the board, they are given to be equal. देखो ध्यान से statement में, non-parallel sides of the trapezium are equal. So what is given to us? Let us write. Given a trapezium ABCD in which AB parallel to CD and AD equal to BC. One pair is parallel and non-parallel sides are equal. This is given to us. Non-parallel sides are equal and one pair of side is parallel. That is due to definition. Am I clear about the given? One pair of side parallel, another is equal. Non-parallel is equal. आपको पता है जिस ट्रेपेजियम में non-parallel sides equal हो जाती हैं उसका एक स्पेशल नेम होता है? Anyone? A trapezium in which ये तो स्पेशल केस हो गया ना ट्रेपेजियम का, जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है. तान्या वांट्स टू, हाँ बिल्कुल सही, इधर से तान्या ने हैंड रेज किया, इधर से साथ ही विवान ने भी आंसर दे दिया, दैट इट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, राइट? सो ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. सो पेपर में क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, प्रूव दैट इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, prove that isosceles trapezium is cyclic. जैसे इसने बोला if non parallel sides are equal of a trapezium, then देखो आगे क्या कहता है, then prove that it is cyclic. इसका मतलब indirectly question can be like this also. उधर बेटे उधर, it means question can be like this also. Prove that, another form of the statement can be like this also. Prove that isosceles trapezium is क्या? Cyclic. Another way of writing the question, because isosceles trapezium वही होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं. अब आपको एमसीक्यू में 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है, which of the following quadrilateral will definitely be cyclic? Rectangle, parallelogram, square, isosceles trapezium. किस पे टिक करके आओगे? Isosceles trapezium. ठीक है, देखो पेपर होना एनसीईआरटी में से ही होता है, बट घुमा फिरा के वही चीजें डाल दी जाती हैं, बच्चे कहते हैं पता नहीं कहां से, अमेरिका से बाहर से आ गया पेपर. ऐसा नहीं होता. यू रीच ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट केयरफुली, देन यू विल डेफिनेटली एबल टू गेट गुड मार्क्स. ठीक है, a trapezium ABCD in which AB parallel to CD and AD equal to BC, this is given to us. We want to prove this is cyclic. Let us firstly make a circle around it. To prove ABCD is a cyclic
quadrilateral. To prove ABCD is a cyclic quadrilateral. So you know when we will be able to prove that this is cyclic quadrilateral? Sum of opposite angles 180 degree. That means indirectly we want to prove A plus C 180 degree and B plus C 180 degree. One construction which is the first major step to proceed towards a theorem, and you have to remember that. Write down one point of construction. Draw AM perpendicular to CD and BN perpendicular to CD. This is the first step of the theorem which you have to remember. Without this construction, you can't proceed towards a proof. This you have to remember. इस पे based है हमारा पूरा question. ठीक है? We'll do it step wise so that we can remember the proof. Theorems में आपको step कुछ याद रखने पड़ते हैं. Starting याद रखनी पड़ती है. Only then you can proceed. चलिए, let us start with the proof. You see, when I did this construction, I got two triangles aside. One triangle is here, another triangle is here. Can you see these two triangles after my construction? First step is construction. Second step is the two triangles that you are getting after construction. Prove those two triangles to be congruent. चलिए, second step क्या है कि आप दो triangles consider कीजिए A and D. In triangle AMD and second is BNC. अपने आप ही जब एक स्टेप आप करोगे ना, फॉलो होते जाएंगे स्टेप्स, राइट? जैसे ये स्टेप आपने कंस्ट्रक्शन का किया, दिस इज फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन. हाउ इट इज फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन? बिकॉज while I am doing construction, after doing the construction, I am getting the two triangles and my attention is towards those triangles and I need to prove those two triangles to be congruent. ठीक है, याद रखनी पड़ेंगी चीजें, तो इनको congruent प्रूव करना है. आपको दिख रहे हैं दो triangles? सबसे पहले तो अपना गिवन यूज करो. क्या गिवन है? AD is equal to BC. This is given to us. AD is equal to BC is given to us. बिल्कुल कोई बोल रहा है उधर से राइट एंगल, बिल्कुल ठीक. दिस इज एंगल 1, एंगल 2, 90 डिग्री. एंगल 1 इज इक्वल टू 2 90 डिग्री. हाँ, ये जो तीसरी बात इसकी कॉन्ग्रुएंसी की है ना बेटे, बोलो राघव. हाँ बोलो. बाय, बिल्कुल ठीक बताया. ये चीज बच्चों को भूल जाती है. देखो कैसे, these two lines they were parallel and they are the distances between the parallel lines, and you know that parallel lines are always at a equal distance. We all have traveled in train. You see that track is like this, railway track is like this. तो उसके बीच में जो lines होती हैं they are at the same distance. ठीक है, अगर ये lines ऐसी हो गई तो ट्रेन जो है कोलैप्स हो जाएगी और जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे. दैट मीन्स वी हैव दिस फैक्ट दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम. ये देखो यहां तक लाइंस पैरेलल थी, जहां से मर्जी डिस्टेंस देख लो सारे सेम. जैसे ये लाइन मैंने नॉन पैरेलल कर दी, डिफरेंट डिस्टेंस भी वेरी करना शुरू हो गया. सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज द सेम. ड्यू टू दैट फैक्ट आई एम यूजिंग AM is equal to BN. लिख लो यहाँ पे साइड पे रीजन लिखो, बिकॉज AB पैरेलल टू CD. इतना ही काफी है. AB पैरेलल टू CD, so distances are same. One right angle, one hypotenuse, one side. Which rule is following here? RHS rule. So by RHS rule, triangle AMD is congruent to triangle BNC. They are congruent. Triangle got congruent. अब आपके दिमाग में बस सेकंड स्टेप congruency का जैसे ही हुआ. Now it is up to us that how we'll utilize this congruency to reach our required result. देखिए जरा इस congruency को हम कैसे यूज कर सकते हैं. You know which angles are our targets?
Actually, these angles are our target. A, B, C, D. ये हमारे टारगेट्स हैं. अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी से कहीं इन तक पहुंचने का मौका मिल जाए तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं. देखो जरा, दिस इज दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent. Can I write angle D equal to angle C by CPCT? This imply, अब मुझे सपना नहीं आ रहा कि मैंने D और C की इक्वालिटी लिख ली है, मुझे अपना टारगेट याद है. D and C उस टारगेट के हिस्से हैं, that's why I'm taking them by CPCT. Mark it to be 1. कुछ और C और D तो हमें मिल गए, एंगल ए पूरा नहीं, C और D तो हमें मिल गए, बट अगर A की मैं बात करूं और B की, सिर्फ इतना हिस्सा A का और B का सिर्फ इतना हिस्सा, मैंने मार्क कर दिया 2 और 3, क्योंकि ट्राइंगल में A का सिर्फ इतना हिस्सा ही पड़ा है, पूरा A नहीं है, और इधर से ट्राइंगल में B का सिर्फ इतना हिस्सा पड़ा है, पूरा B नहीं है. पर कुछ हद तक तो मैं A और B तक पहुंचूं, अपने आप पूरा A B मैं फाइंड कर लूंगी. सो कैन आई राइट एंगल 2 इक्वल टू 3 बाय अगेन CPCT. ठीक है, 2 इज इक्वल टू 3 अगेन बाय, हाँ जी, और सॉरी 2 इज, हाँ 3 होएगा, 2 हम मार्क कर चुके हैं. 3 इज इक्वल टू 4 बाय CPCT. चलो C, I reach 3 but I want A. I reach 4 but I want B. 3 पे हूं, मुझे A चाहिए, 4 पे हूं, मुझे B चाहिए. आपको पता है ये 3 अगर पूरा एंगल A बनना चाहता है तो उसमें ये एंगल ऐड होगा. You know, this angle will be added. And here it is 4. If it wants to be full B, this angle to be added. और सबको पता है एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है. कैसे? Because this is 90, these two are parallel, transversal, alternate interior angles. These two parallel, this transversal, this 90, this is also be 90. So if we are adding 90 to both sides, we'll reach at A and B. तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये 90 है कैसे और ये 90 है कैसे. आप सीधा लिखो एडिंग 90 टू बोथ साइड, और साइड पे रीजन लिख दो, यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हाँ जी, 3 में 90 ऐड हुआ, 4 में 90 ऐड हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगा. 3 एडेड टू 90 विल बिकम्स एंगल A. 4 angle to 90 will becomes angle B. Equation number 2. This is called, this I should say that this is the most dangerous step, that how to use the congruency. याद रहेगा पेपर में हमें congruent प्रूव करना है, बट उस congruency को अपने प्रूफ के लिए यूज कैसे करना है, that will create difficulty for you, right? So these two equations, they are the basic to reach the last final result. We need the sum of two opposite angles to be 180. You know what is the sum of all these 4 angles? 360 by using angle sum property of quadrilateral. Right now, angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. So मुझे पहले A और C चाहिए, उन पे ऊपर टिक कर लो, इसको नहीं गायब करना. B can be replaced by A. C मुझे चाहिए, I am writing it as it is, and D can be replaced by, हमने अभी लिखा D and C equal है 360. 2 times angle A, 2 times C 360, 2 common, angle A plus C 360. So A plus C 360 over 2. So A plus C is equal to 180. Opposite pairs का sum 180 हो गया. Can you prove that B plus C is also 180? ये तो similarly हो जाएगा. If out of 4 angles, 2 angles sum is 180, so rest of the 2 angles sum will also be 180. Similarly, B plus C is equal to, सीधा similarly भी लिख सकते हो, साइक्लिक से भी, साइक्लिक को हम प्रूव कर रहे हैं, तो B plus T is equal to 180. If sum of either pair becomes 180, this quadrilateral is known as cyclic quadrilateral.
मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ स्टेप्स ताकि आपको याद रहे। पहला स्टेप याद रखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन का। क्या कंस्ट्रक्शन की थी? AM perpendicular to CD, BN perpendicular to CD. After construction, we are getting two triangles. Which two triangles? AMD, BNC. First step, मतलब second step हमें क्या याद रखना पड़ेगा? We need to prove the congruency of these two triangles. मैंने congruency prove की, यहाँ तक याद रहा हमें, यहाँ तक याद रहेगा। congruency को use कैसे करना है? That will be difficult. So मैंने congruency को कैसे use किया? C equal to D हो गया। This angle, this much angle is equal to this much angle. But मुझे पूरे एंगल पे पहुंचना था. What I have done? Added 90 to both sides. So two equations I am getting. C equal to D, A equal to B. Using those equations by applying angle sum property of the quadrilateral, you will getting A plus C equal to 180 degree, B plus C is equal to 180 degree, and that is what we desire. And this proves ABCD a cyclic quadrilateral. So what we have proved? That isosceles trapezium is always cyclic. Or in other words, if non-parallel sides of a trapezium get equal, then that trapezium becomes a cyclic quadrilateral. Let us continue with question number 9. Question number 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 की खासियत ये है, मुझे इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसकी फिगर दी हुई है। Question number 9, figure is given to us, so that's why it seems to be a little bit easiest. देखें जरा, फिर भी जैसे जैसे वो कह रहे हैं हम वैसे वैसे फिगर्स बनाते हैं। There are two circles intersecting at B and C. One circle, another circle intersecting at B and C. We'll make the figure according to his saying. One figure, one circle, another circle intersecting at B and C. There are two lines. One is PBQ like this. Another is ABD. They are intersecting lines. You can see intersecting at point B. Two intersecting lines are made, PBQ and ABD. Then angle, एक मिनट Q शायद इस साइड होगा, नहीं ठीक है. Angle ACP. This is angle ACP, and then QCD. This is angle QCD. This way we form the figure. दो intersecting line बनाई, PBD, ABD. Then angle ACP हमारा 2 prove है, QCD हमारा 2 prove है. Figure is completed like this. Very easy to make the figure if you know, if you read the statement carefully. Two intersecting line, PBQ, ABD. Then either say angle ACP, and from this side angle QCD. Given is all there in the statement. So I'm leaving it. You can write it from the book that two circles intersecting at point BC and two intersecting lines PBD and ABD are given to us. Let us see what we want to prove. To prove angle ACP is equal to angle QCD. This is what we want to prove. ACP equal to QCD. चलिए मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी इस थ्योरम को, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। जब हमारे पास एक सर्कल होता है, मैं उस सर्कल की एक कोड बनाती हूँ AB और आपसे पूछती हूँ कि इस कोड ने पॉइंट P पे कौन सा एंगल बनाया। बोलो APB, starting from the one end, going to the point, getting back to the another end, you get the angle. ठीक है? This code is making angle APB at the point P. चलो अब मैं दूसरी तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, देखती हूँ आप बता पाते हो कि नहीं। If I am having an angle say PQR at the point Q and I am asking you which is the chord of this angle? वो तो रेज हैं, वो तो रेज हैं. Which chord is making this angle? PR, end points of the rays meeting, getting the chord. यानी कि आपको पता होना चाहिए कोड से एंगल कैसे जज करते हैं और एंगल से कोड कैसे जज करते हैं. हाँ, वो तो रेस है एंगल्स की, एंगल की जो आर्म्स है वो. ठीक है, तो जब हमारे पास कोड होती है, कोड के एंड पॉइंट को पॉइंट तक लेके जाओ, एंगल मिल गया. और जब हमारे पास एंगल होता है, एंगल के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, कोड मिल गया. याद रखना ये बात मैंने अप्लाई करनी है इस थ्योरम में. लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ.
प्रूफ, लेट अस सी। अभी हमारा टारगेट है एंगल एसीपी, लेफ्ट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखो प्रूफ की, एसीपी है ना, मैं इस सर्कल को कर रही हूँ रब, मुझे एसीपी जिस सर्कल में दिख रहा था मैंने वो सर्कल कंसीडर कर लिया, आपने नहीं रब करना, जस्ट टू गेट द बेटर व्यू आई एम रबिंग इट, ठीक है, एसीपी। अब देखो जरा अपना टारगेट एसीपी, अगर मैं आपसे पूछूं इस एंगल एसीपी की कोड कौन सी है, एपी, एवरीवन इज एग्रीइंग विद मी, मैंने एपी को किया ज्वाइन फॉर अ टाइम बिंग। जैसे ये कोड आई, सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, एक कोड के नीचे एक कोड के ऊपर, एंगल एसीपी एंड अनदर एंगल एबीपी, दे आर बिकमिंग angles in the same segment made by which code, AP, and we know that angle made by a chord in the same segment are equal। तो आपको लगता होगा कि ये स्टार्टिंग कैसी, मतलब हमें कैसे याद आएगा, मैंने तो सिर्फ अपना टारगेट उठाया, मेरा टारगेट एसीपी है, पर इस टारगेट को उठाते उठाते मुझे एबीपी एंगल को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तभी मैं अपने प्रूफ तक पहुंच पाऊंगी। सो यू आर राइट डाउन, कंसीडर कोड एपी, consider chord AP of the circle, there this now लिखो, now angle ACP is equal to angle ABP, angles in the same segment। mark it to be equation number 1। कुछ हद तक हमने स्टार्टिंग तो की, चलिए हमारा टारगेट ही सीपी था, उससे हमने शुरू किया अपना थ्योरम का प्रूफ, इतना याद आ जाएगा हमको पेपर में, that whatever we want to prove, we'll start with that, and that angle is sitting in this circle, and this angle will be formed by which chord, AP, so that's why I'm considering the chord AP in starting, right? Now let me make the second circle now, because in that circle I need something। Now you see, जो मेरा दूसरा टारगेट है ना QCD, वो मेरा दूसरे सर्कल में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब अब ये सर्कल, फरिश्ते आते हैं मदद करके चले जाते हैं, ये सर्कल गया, अब हमने एंट्री मारनी है इस सर्कल में। अब जिस एंगल पे हम बैठे हुए हैं एबीपी पे, मुझे किसी तरह से इस सर्कल में एंट्री मिल जाए, जैसे कि मुझे गुफा में जाने की चाबी मिल जाए, अंदर से नागमणि तो मैं उठा ही लूंगी किसी तरह, ठीक है ना, किसी तरह से हम इस सर्कल में एंटर कर जाएं QCD पे, तो मैं पहुंच ही जाऊंगी बाय दिस वे और द अदर वे। दैट मींस हाउ टू एंटर इन दिस सर्कल बाय यूजिंग दिस एंगल वेयर वी आर स्टॉपिंग, लेट अस सी, दिस इज एबीपी, दिस इज एंगल एबीपी, इस एबीपी के थ्रू मैंने इधर एंट्री मार ली, इस एंगल के थ्रू QCD, QBD, कैन यू टेल मी द रिलेशन, वर्टिकली, बहुत अच्छा लगा मुझे, बच्चों ने खुद जज किया that ABP is equal to QBD by using the concept of vertically opposite angle। अब ये भी कोई रट्टा नहीं है, मुझे कहां से पता चली ये चीज, क्योंकि मुझे इस सर्कल में एंट्री मारनी थी, और वो एंट्री इस एंगल की हेल्प से होगी। मुश्किल है चीजें करेंगे उसमें भी करेंगे, पहले एंट्री तो मारे उसमें, किससे, इधर से उधर चले जाओ, एक से दूसरे में जाना है। सो राइट डाउन एंगल ABP इज इक्वल टू QBD, ABP is equal to QBD, question number 2, marking vertically opposite angle, these are intersecting lines, already I have told you, intersecting lines vertically opposite angles equal, equation number 2 we have formed। अब कहां पे रुके हम, QBD पे, अब इसी से स्टार्ट करेंगे, हमारी इक्वेशन कहां पे रुकी, QBD पे, हम इसी से स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, QCD, देखें जरा, पहले देख लो बाद में लिखना, लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू, look at the board please, this is QCD, if I am asking you which chord is making this angle QCD, QD chord, consider chord QD, write down, consider chord QD, consider chord QD, जिस एंगल पे खत्म किया वहीं से शुरू करो, एंगल QBD is equal to angle QCD, angles in the same segment, same reason,
angles in the same segment. We are getting 3 equations and we are very much near to our proof by using these 3 equations. Firstly, write down, I'll tell you how. चलिए भाई, हम अपने प्रूफ से ही उठाएंगे. हमारे प्रूफ का पहला एंगल कौन सा है? ACP. मैं लिखूंगी, आपने बोलना है इक्वेशंस को देख देख के. आई एम राइटिंग ACP. दिस इज इक्वल टू व्हाट? ABD. ABD is equal to what? ABP है, sorry, this is ABP. ABP is equal to what? QBD. And QBD is equal to what? QCD. आप लिखोगे from 1 2 3 सारे एंगल्स इक्वल आ गए. हमने इससे शुरू किया अपने टारगेट से. ACP मैंने कुछ नहीं लिखा, आपने बोला ACP इक्वल टू ABP. ABP इक्वल टू QBD. एंड QBD इज इक्वल टू QCD. सारे एंगल्स इक्वल आ गए. हमें इनमें से कौन से दो इक्वल चाहिए? ACP एंड QCD. सो दिस इंप्लाइज एंगल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरम इज दिस दैट ACP इज इक्वल टू QCD. मैं कहती हूँ ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ना, समझो आपका जैकपॉट लग गया, क्योंकि इसकी क्या है? फिगर गिवन है. अदरवाइज बाकी थ्योरम जितने भी क्वेश्चन आगे आ रहे हैं उनकी फिगर ही नहीं गिवन, और फिगर के चक्कर में आप लोग सब खराब कर देते हो. मैं एक बार रिपीट करती हूँ, पहले नोट कर लो. ठीक है बेटे, मैं रिपीट करने लगी हूँ. देखो, टारगेट से स्टार्ट किया ACP, पहला सर्कल, कोड ढूंढी ये वाली. ACP किसके इक्वल हो गया? ABP के. फर्स्ट इक्वेशन देख लो कोड की तरफ, आपके लिए रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ABP की हेल्प से सेकंड सर्कल में एंटर किया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. QBD आया. सेकंड सर्कल में एंटर हुए, QBD आ गया. मुझे QCD चाहिए था, कोड मिल गई मुझे QD कोड के अकॉर्डिंगली QBD is equal to QCD. 3 equations, comparing them, getting full angles to be equal and picking up those which you need. Actually, this is the just game of 3 equations. If you are able to form those 3 equations, definitely you will read the result. अब एक चीज याद रखना, एक और मैं इस क्वेश्चन का अपने दिमाग में वे रखती हूँ. इक्वेशन जहां पे खत्म वहीं पे शुरू. ABP पे खत्म, ABP से शुरू. QBD पे खत्म, QBD से शुरू. कुछ बच्चे तो सीधा ही लिख देते हैं ACP ABP के इक्वल. फटाफट देखते हैं. ABP पे पहुंचा हुआ, ABP QBD के इक्वल. QBD पे पहुंचा हुआ, QBD QCD के इक्वल. 3 इक्वेशन फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में बना के हो गए. ठीक है. सो दिस इज द गेम ऑफ दीज 3 इक्वेशंस. स्टार्ट कैसे करना है? अपने प्रूफ से, एंड रेस्ट इज ओनली. तो फिर भी हो जाएगा. हमारी वैसे आदत होती है कि अगर इस सीक्वेंस में कुछ पढ़ा हो ना, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. मंदिर में आप जब जाते हो, इस तरफ से भगवान जी की मूर्तियां लगी होती हैं, तो कम ही हम करते हैं कि इधर से इधर आए, हम इधर से उधर जाते हैं. तो इसलिए हम सर्कल में इधर से इधर आए. ठीक है. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11. 10th क्वेश्चन. Question number 10. Let us read out the statement of the question. If statement की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. If जैसे हर टाइम पे हमारी सांस लेनी जरूरी होती है ना, इनहेल एंड एक्सहेल, क्योंकि अगर हम वो इनहेल एक्सहेल करना छोड़ दें तो हम कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना. Every time we should inhale and exhale. Similarly, when we are starting with the question, आपकी आंखें क्वेश्चन पे, आपका आंखें दिमाग इस तरह से लगी होनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि इट इज लाइक इनहेल एंड एक्सहेल. चलिए. If circles are drawn taking 2 sides of triangle as diameter. Circles are drawn taking 2 sides of triangles as diameter.
सबसे पहले तो मुझे खुद नहीं समझ आई स्टेटमेंट, मुझे इतना पता चला कि एक ट्रायंगल की बात हो रही है, मैंने बना लिया। Then he says circles are drawn taking two sides as diameter. मैंने पहले ये साइड ली, इसको डायमीटर कैसे बनेगा अगर सर्कल की बाउंड्री दोनों पॉइंट्स को टच करे। इसको डायमीटर लेते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। वैसे लग नहीं रहा ये डायमीटर, डायमीटर फिर कैसे बनेगा, सेंटर थोड़ा होगा वो, डायमीटर तो सरकमफ्रेंस पे होते हैं पॉइंट। डायमीटर अगर ए बी है तो ए और बी सरकमफ्रेंस पे होने चाहिए, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट साइड एज डायमीटर यू ड्रॉ द सर्कल। उसने बोला सर्कल्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग टू साइड्स एज डायमीटर। पहली साइड को लेके आपने ये वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया, दूसरी साइड को डायमीटर लेते हुए यू ड्रॉ दिस सर्कल। हाँ, इसमें एसी डायमीटर हो गया। सो व्हाट इज द फिगर, ट्राइंगल एबीसी, फर्स्ट सर्कल इज ड्रॉन बाय टेकिंग एबी एज डायमीटर, सेकंड सर्कल इज ड्रॉन बाय टेकिंग, देखो यहाँ पे आपको डायमीटर की डेफिनेशन क्लियर होनी जरूरी है। द डायमीटर इज दैट लाइन इन द सर्कल व्हिच टचेस द सर्कमफ्रेंस। तो ए से शुरू होते हुए बी को टच करते हुए एक सर्कल निकला, एंड ए से शुरू होते हुए सी को टच करते हुए वी आर गेटिंग द सेकंड सर्कल। सो टू सर्कल्स वी आर ड्रॉइंग by taking two sides, namely AB and another AC as diameter of the circle. अभी हम इसके अकॉर्डिंगली अपना गिवन लिख दें और यहाँ पे एक पॉइंट डी मार्क कर दो। राइट डाउन गिवन, a triangle ABC and two circles with sides AB and AC of triangle as diameters with sides AB and AC as diameter. This is given to us. अभी मैं फिर कह रही हूँ कि ये डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसकी फिगर गिवन नहीं है। जिसकी फिगर गिवन नहीं है उसकी डिफिकल्टी लेवल 10% बढ़ा के चलो, क्योंकि वो फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बनानी पड़ती है। देखें टू प्रूफ क्या है, आगे बढ़े जरा स्टेटमेंट, लेट अस सी। Prove that the point of intersection it lies on the third side. Prove that the point of intersection it lies on the third side. देखो जरा इन दोनों सर्कल्स के आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन लग रहे हैं, ए एंड डी। ए को निकाल दो, ए को छोड़ दो। क्यों ए को मैंने छोड़ा, क्योंकि ए डायमीटर्स पे बैठ गया, उसकी बात हो चुकी है। कौन सा पॉइंट बचा, डी। इस तरह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे दैट वी वांट टू प्रूव दैट D lie on the third side, that means D lie on BC। फिगर से तो पता चल ही रहा है कि D BC पे बैठा है, प्रूफ कैसे करेंगे, विल सी। पहले मुझे ये बताओ टू प्रूफ समझ आया, राइट डाउन टू प्रूफ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन that is D lie on BC। Point of intersection that is D lie on BC. This we want to prove. Again I am repeating, one triangle, two circles with AB and AC as diameter intersecting at the point D. We want to prove D lies on the third side. Third side कौन है, AC, BC. So we want to prove that D lies on BC. फटाफट से लिख लो, अभी मैंने एक जनरल बात समझानी है, उसी के बाद हम प्रूफ पे चलेंगे। ये मेरे पास है दो पॉइंट बी एंड सी। तीसरा पॉइंट मैंने डी लिया और मैंने एक पाथ बनाया। अगर ये पाथ इस तरह से बनता है बी डी और सी के बीच में, तो क्या डी बी सी पे लाई करेगा? अगर ये पाथ डी बी सी की पोजीशन में इस तरह से लेती हूँ और इस तरह से एक पाथ क्रिएट करती हूँ, विल दिस डी लाई ऑन बी सी? कहाँ, मेरे को तो दिख नहीं रहा। नहीं, पहले बताओ लाई कर रहा है कि नहीं, सिंपली बताओ। कर रहा है, बीसी ये है, डी ये है, लाई कर रहा है। अगर पाथ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो डी कभी बीसी पे लाई नहीं कर सकता। अब बताना मुझे जरा, इफ द पाथ इज लाइक दिस एंड डी इज हियर, विल इट लाई ऑन बीसी? दैट मीन्स डी विल लाई ऑन बीसी ओनली व्हेन बीडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। डी बीसी पे तभी लाई करेगा अगर हम ये प्रूव कर दें
कि BDC एक स्ट्रेट लाइन है, तभी लाई करेगा D। अगर ये स्ट्रेट लाइन ना हुई, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हुई, तो D ने अपना रास्ता अलग कर लेना है, D ने BC से उठ जाना है। तो इसका मतलब D BC पे तभी लाई करेगा जब ये BDC एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। एम आई क्लियर? अब देखना, अब इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है, BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो ध्यान से अगला पॉइंट, ये मेरे पास एक लाइन है, मुश्किल है, मैं बार बार कह रही हूँ, हर चीज के बाद एक नई चीज आ जाती है। अगर मुझे किसी लाइन को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना हो, मैं उसके ऊपर एक रे खड़ी कर देती हूँ, ऐसे रे, ये रे आ गई। अगर इस लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम 180 हो जाए तो लाइन क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हमें D पे फॉल करती हुई इस लाइन BC पे कोई लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए और उसके बाद आसपास बनने वाले एंगल्स का सम 180 प्रूव कर देना चाहिए, जिससे ये प्रूव हो जाएगा that BDC is a straight line. And when BDC will straight line, D will definitely lie on BC. D will definitely lie on BC. So first target to prove BDC is a straight line. Second target to get two angles aside sum 180. तो पहले मुझे लाइन लानी पड़ेगी, उसके लिए कंस्ट्रक्शन लिखो, join AD। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। join AD, फिर तो बात ही खत्म होगी। कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ प्रूफ रहता हो, सीधे परपेंडिकुलर बना दिया तो फिर तो बात ही खत्म होगी। ऐसे तो हर फिगर में हम अपने अकॉर्डिंगली बना दे और कहते हो गया जी, प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है ट्रेपीजियम बनाया था मैंने, उसके आसपास सर्कल बना दिया था, आप कह सकते थे मैम ये तो सर्कल, इसकी बाउंड्री सर्कल को टच कर रही है, ये हो गया साइक्लिक। प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रूफ, हाँ जी, पॉइंट ऑफ, यहां से तो प्रूफ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज D लाइज ऑन द थर्ड साइड BC। ये हमें प्रूव करना है, D लाइज ऑन BC। और D BC पे कब लाई करेगा, जब BDC एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। बना कर ली आपने, कंस्ट्रक्शन कर ली। अब मैं इस सर्कल को जरा रब कर दूं और आपसे कुछ पूछूं। आपको पता है AB सर्कल का क्या था, डायामीटर। ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। AB सर्कल का डायामीटर था, इसका मतलब आधा सर्कल AB की राइट साइड है, नीचे आधा ऊपर है। दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल, एग्री? अगर ये सेमी सर्कल है तो ये एंगल कितना होगा, 90। कौन सा ऑब्जर्वेशन, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो आप लिखो कंसीडर वन ऑफ द सर्कल, प्रूफ शुरू करो। कंसीडर वन ऑफ द सर्कल विद AB as diameter. This implies angle ADB equal to 90, equation 1. Reason, angle in the semicircle. First equation we form.